Assalamu alaikum, dear student. So today I am going to discuss with you the interaction of your test number 6 for physics paper. Now question number 1. Two coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry are located so close together that the effective flux in one is completely linked with the other. The mutual inductance between these two coils is. तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दैट अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है दैट इज k टाइम्स रूट ऑफ L1 and L2. This is the formula, है ना, which connects mutual inductance with the self-inductance of the two coils. Where K is called as coefficient of coupling, and for her tight coupling, K का value जो है वो 1 होता है. क्योंकि यहाँ tight coupling है, completely flux is linked. Therefore, M can be directly calculated. It is root of L1. तो पहली कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट्स 2 मिली हेनरी, दूसरी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज गिवन 8 मिली हेनरी. देन M is equal to root of 16. Root of 16 is nothing but 4 millihenry should be the right answer for the question number first. Yes, option number third. Option number third, that's 4 millihenry is the right answer. Question number next. A thin semicircular conducting ring PQR of radius R is falling with its vertical plane in a horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the rings when its speed V is. तो ये आपका thin semicircular जो conducting ring PQR है ये vertically fall कर रहा है. तो अगर ये नीचे की तरफ with some velocity V fall कर रहा है, magnetic field is like this, it's perpendicular to the plane and it is inwards. Perpendicular to the plane inwards. Then what we have to calculate is that we have to calculate the EMF developed. तो magnetic field अगर perpendicular to the plane and this thin semicircular conducting ring falling downwards, तो हमें पता है that motional EMF जो इसमें develop होगा that EMF is equal to BLV. तो magnetic field strength है B, the length will be effective length. Effective length अगर आप देखेंगे, so this is your effective length here, so it's R plus R, it's 2R. The effective length here is 2R and the velocity is V. तो magnitude should be 2B RV. This should be the magnitude of the EMF. So magnitude of the EMF should be 2RBV. So last option में सिर्फ है ये. एंड अब आपको बोलना है कि P हायर पोटेंशियल पे है कि Q हायर पोटेंशियल पे. उसके लिए आप राइट हैंड पाम रूल यूज करिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, तो ये हो गया इनवर्ट्स और नीचे की तरफ ये फॉल कर रहा है, तो थंब शोज दैट इट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से. तो जहां की तरफ आपका पाम होता है वहां की तरफ हायर पोटेंशियल होता है, तो R शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड P शुड बी एट लोअर पोटेंशियल. तो 2RBV एंड R इज एट हायर पोटेंशियल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The RMS value of potential difference V as shown in the figure is. So we have to calculate the RMS value for this from this graph. जहाँ हमने एक VT ग्राफ को प्लॉट किया है, तो we have to calculate its RMS value. This is a very important question. तो RMS value हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए इसमें आपको इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी एंड फॉर दैट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आपको पता होना चाहिए हमें RMS वैल्यू निकालना है पोटेंशियल टाइम ग्राफ से. तो पहले RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर दिस इज वैल्यू या इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं. तो पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या करने जा रहा हूं, आई विल कैलकुलेट मीन एंड देन स्क्वायर और लास्ट में रूट करने जा रहा हूं. तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा. तो पहले मैं मीन निकालूंगा और आपको पता होना चाहिए दैट मीन वैल्यू जो है या एवरेज वैल्यू V बार से मैं डिनोट करता हूं. तो एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए सबको दैट एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt with proper limits. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू. अब अगर एवरेज वैल्यू को मैंने V बार से यहां डिनोट किया, अब एवरेज वैल्यू यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ E का वैल्यू मतलब पोटेंशियल का वैल्यू यहां से यहां तक आप देखेंगे अगर V नॉट है फ्रॉम 0 to T, तो पहले V नॉट है वैल्यू एंड देन इट इज dt और इंटरवल जो है दैट इज 0 to T/2 प्लस इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि पूरे साइकिल के लिए हम देखेंगे यहां तक T तक. उसके बाद अगर आप वैल्यू देखोगे EMF का वो 0 है, तो फिर से लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 देन इट इज dt एज पर द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E dt और टाइम अब लूंगा मैं T/2 से T तक डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to T. क्योंकि मैं RMS वैल्यू निकालना है तो टोटल टाइम पीरियड के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अगर सिर्फ एवरेज वैल्यू निकालना होता तो एवरेज वैल्यू हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं. फॉर RMS वैल्यू ऑलवेज गो फॉर अ कंप्लीट साइकिल और कंप्लीट साइकिल हो गया 0 to T. 0 to T के लिए हमने क्या किया, पहले मैंने इसको ब्रेक किया एज पर द ग्राफ. तो 0 to T/2 तक इसका वैल्यू V नॉट है, तो 0 to T/2 तक इसका वैल्यू V नॉट है dt एंड फिर T/2 से T तक इसका वैल्यू 0 है dt फ्रॉम T/2 to T डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to T. अब आप देख लीजिए
अब ये हो गया इसका मीन वैल्यू। अब मैं इसमें स्क्वायर लूंगा, अब स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायरिंग इट ऑन बोथ साइड्स, तो जीरो पे स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है, तो जीरो का जो है तो ये टर्म ही उड़ गया, तो इट इज अ वी बार स्क्वायर जो हमारा है। तो फिलहाल मीन और स्क्वायर मैंने ले लिया, वी नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू t by 2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, वो तो t ही होता है फ्रॉम 0 टू t। नाउ इट इज v नॉट स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, अपर लिमिट इसमें ड्रॉप करेंगे तो ये बनेगा t by 2 डिवाइडेड बाय, तो t माइनस 0 t होता है, t कैंसल आउट होके आपका जो वैल्यू बचा दैट्स v बार स्क्वायर इज इक्वल v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसका रूट लीजिए, फाइनली वी विल टेक इट्स रूट। अगर हम रूट लेते हैं दोनों साइड से तो आपका VRMS आ जाएगा V naught divided by root 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस। तो इट इज V naught by root 2 शुड बी द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल जो है अपने फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयार करके जाएंगे। Question number next is, in the given figure, the resonant point for XL versus frequency. This is XL here function of frequency actually, ठीक है, and XC function of frequency। हम सबको पता है that XL होता है बराबर, it is omega L, और omega होता है 2 pi न्यू के बदले इसने F यूज किया है, and then L। XC आपका जो होता है that's 1 by omega C, and therefore it's 1 by 2 pi, it is F and into C। F जो है इट इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। तो XL जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस ग्राफ में आपको बोलना है कि XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी में के इन द गिवन ग्राफ द रेजोनेंट पॉइंट, हमें बोलना है रेजोनेंट पॉइंट कौन सा है। तो रेजोनेंट पॉइंट पे रेजोनेंस जब होता है सर्किट में, LCR सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के वक्त एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि XL जो है वो XC के बराबर आता है। तो वो पॉइंट जिस वक्त इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर आता है उस पॉइंट को हम रेजोनेंट पॉइंट कहते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहां पे देखिए आप, यहां पे XC तो कम है, XL तो आपका बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पे आपका XL ही 0 है, XC का वैल्यू बहुत है, और एक ही पॉइंट ऐसा है जिस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि जितना XL ऊपर है उतना ही XC नीचे है। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, यही तो हमारा पॉइंट ऑफ रेजोनेंस होना चाहिए। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज पॉइंट R इज द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in an oscillating LC circuit, तो we are having an LC oscillating circuit, तो ये LC oscillations based question है। the maximum charge on the capacitor is Q। तो जो maximum charge है, अगर हमारे पास एक LC सर्किट है, अगर हमारे पास एक LC सर्किट है तो ये C है और L है, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर जो है वो है Q। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब हमें बोल रहा है अब कितना चार्ज रहेगा कैपेसिटर पे जब एनर्जी इक्वली स्टोर रहेगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में, मतलब जितनी एनर्जी अब इधर है उतनी एनर्जी इधर है। तो मतलब अगर टोटल एनर्जी कैपेसिटर की हम ले, टोटल एनर्जी जो हम कैपेसिटर की ले उसका आधा अब इंडक्टर में है और उसका आधा अब कैपेसिटर में है, तो टोटल एनर्जी जो है, तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे कि कैपेसिटर पे जो अब एनर्जी है, तो एनर्जी ऑन द कैपेसिटर नाउ इज इक्वल हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो एनर्जी ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि अब हमें फाइनल चार्ज निकालना है तो फाइनल चार्ज के लिए मैं इसमें Q डैश यूज करूंगा, इज इक्वल इट्स 1/2। तो टोटल एनर्जी जो थी पहले, कैपेसिटर आपका फुली चार्जर था इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज देने का मतलब जब आप इसके मैक्सिमम चार्ज की बात करेंगे तो सारी एनर्जी इनिशियली इसी कैपेसिटर में स्टोर थी। फिर आपने जब इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो एनर्जी अब जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी अब यहां की तरफ जाएगा, मगर ये उस टाइम की बात कर रहा है जब आधी एनर्जी इसमें है तो आधी एनर्जी इसमें है। इसीलिए मैंने लिखा कि अब जो एनर्जी कैपेसिटर पे है, अब जो एनर्जी कैपेसिटर पे है, तो दैट्स एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी है, और इनिशियल एनर्जी के लिए मैं Q स्क्वायर बाई 2C ही यूज करूंगा, क्योंकि इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है वो Q है और कैपेसिटेंस इज C। तो इस क्वेश्चन में आप जो है, ये बिल्कुल एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको लेंथी प्रोसीजर से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, बट ये जो तरीका है कि कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज जब एनर्जी आधी आधी बट गई है तो अब कैपेसिटर की वो एनर्जी वो होगी हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट वाज फुली चार्जड। तो कैपेसिटर पे एनर्जी जो है हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज इटसेल्फ द एनर्जी ऑन द कैपेसिटर जब ये इनिशियली
इस पे टोटल चार्ज क्यू था, तो टोटल चार्ज क्यू था तो टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ इज इक्वल क्यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2c आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपका क्यू डैश जो है क्यू डैश हो जाएगा q by root 2 is the right answer for this question. So q dash is equal to q by root 2 should be the right answer. So this is the answer for this question. Very important for your entrance. Question number next is in a resistance, in a coil resistance 10 ohm, in a coil resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure as a function of time. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is very important question. तो आप सबको पता होना चाहिए ईएमआई का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि चार्ज होता है बराबर चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन हम डेवलप करते हैं बाय दैट आई इज इक्वल एक्चुअली ई बाई आर, देन आई इज इक्वल ई होता है बराबर डी फाई बाई डी टी एज पर ईएमआई लॉज ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया आई डी टी, ये मैं आपको ऑरिजिन दिखा रहा हूं इक्वेशन का, डी फाई डिवाइड बाय आर, बट आई डी टी इज नथिंग दैट इज चार्ज, देन इट इज डी फाई डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द इक्वेशन जो इसको गाइड करती है इस क्वेश्चन को। तो चार्ज होता है चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस, और हमें चेंज इन फ्लक्स ही निकालना है। तो चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस विल गिव अस द चार्ज। अब चार्ज तो दिया नहीं, आपको आई टी करू दिया है। आपको पता होना चाहिए दैट चार्ज इज नथिंग, चार्ज जो है वो एरिया अंडर आई टी करू है, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आई टी ग्राफ का एरिया हमें चार्ज देगा। तो मैं लिखूंगा एरिया अंडर आई टी करू, एरिया अंडर आई टी करू, आई टी करू का एरिया ही हमें चार्ज देता है, और वो होगा बराबर चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस। अब एरिया अंडर आई टी करू के लिए हमें चार्ज मिल जाएगा। तो एरिया हो गया ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस आप देखिए इट इज 0.1 इनटू अल्टीट्यूड आप देख लीजिए दिस इज 4 इज इक्वल चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज प्रोवाइडेड दैट इज 10 ओम। तो यहां हम 10 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 2 2 4, और ये हो गया 10 इंटू 0.1 हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2। द चेंज इन फ्लक्स इज नथिंग बट 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 2 शुड बी द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इटसेल्फ इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, The current in a coil varies with time as shown in the figure. तो ये current versus time graph है. The variation of induced EMF with time would be, हमें variation of induced EMF इस क्वेश्चन में निकालना. We have to calculate the variation of. तो हमारे पास current versus time graph है, हमें EMF versus time graph predict करना है. Current versus time graph, हमें EMF versus time graph निकालना है. किसमें? The current in a coil. तो ये एक इंडक्टेंस है, एक coil है. तो इसका solution जो है आपको पता होना चाहिए कि EMF in a coil जो डेवलप होता है वो न्यूमेरिकली होता है बराबर -L di/dt. This is nothing बट फैराडेज लॉज ऑफ EMI के हिसाब से आपका सेकंड लॉ है. तो EMF होता है बराबर इंडक्टेंस में जो डेवलप होता है दैट्स -L di/dt. दिस नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ. इट शोज अस द अपोजिशन, है ना, शोन बाय द इंड्यूस्ड थिंग्स टू द ओरिजिनल व्हिच क्रिएट्स दैट इंड्यूस्ड थिंग. तो E जो है -L di/dt. तो di/dt जो इस ग्राफ इस इक्वेशन में जो di/dt है, di/dt इज नथिंग बट स्लोप ऑफ IT करो. दिस इज स्लोप ऑफ IT करो, स्लोप ऑफ IT करो. तो अब हमें क्लियर हुआ कि जब हम स्लोप ऑफ IT करो को, L तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए इसको, स्लोप ऑफ IT करो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें EMF का जो है, हमें EMF का ग्राफ प्रोवाइड होगा. तो EMF का ग्राफ जो होगा वर्सेस टाइम दैट इज नेगेटिव टाइम्स, दैट इज नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ IT करो, स्लोप ऑफ IT करो, नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ IT करो. अब आप देख लीजिए IT करो का स्लोप जो है, अगर आप ग्राफ में देखेंगे ये जो है इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, क्योंकि यहाँ थीटा जो है, यहाँ थीटा अगर आप देखेंगे, अगर आप इस ग्राफ में ये थीटा देखेंगे, दिस इज एन एक्यूट एंगल हियर, दिस इज एन एक्यूट एंगल. तो स्लोप इसका पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट, तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप. एक्यूट एंगल की वजह से ये पॉजिटिव है और स्लोप स्ट्रेट लाइन की वजह से कांस्टेंट है. तो इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप. पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप को जब आप पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो EMF का ग्राफ वर्सेस टाइम जो बनेगा आपका, दैट इज EMF वर्सेस टाइम का जो ग्राफ, तो इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप को जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी अ नेगेटिव कांस्टेंट. तो पहला हिस्सा जो है 0 से T/4 तक इट शुड बी अ नेगेटिव कांस्टेंट. तो 0 से T/4 तक, 0 से T/4 तक आपका नेगेटिव
नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। उसके बाद अगर आप देखोगे अब इसका स्लोप जो है इस हिस्से का t/4 से t/2 तक वो जीरो है। जब इसका स्लोप जीरो है तो ईएमएफ डेफिनेटली जीरो होगा। तो यहां आप देखोगे t/2 तक बिल्कुल ईएमएफ जो है बिल्कुल जीरो है। उसके बाद आपका यहां ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव कांस्टेंट बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा और फिर आपका ग्राफ जो है ऐसा दिखना चाहिए। सो दिस शुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ आईटी कर्व से जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको स्लोप ऑफ दैट ग्राफ और दैट ईएमएफ वर्सेस टाइम जो है आप पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux 5 Weber linked with the coil varies with time according to this, the current in the coil. तो हम सबको पता है कि करंट होना चाहिए बराबर E/R। अब EMF जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, क्योंकि फ्लक्स दिया है आपको और आपको पता होना चाहिए इट इज d∅/dt एंड डिवाइडेड बाय R, d∅/dt डिवाइडेड बाय R। तो इट इज d बाय, तो R में बाहर ही निकालता हूं फिलहाल, 1/R में बाहर रखता हूं, इट इज d/dt ऑफ phi। तो यहां आपका जो करंट आ जाएगा, हमें करंट ही निकालना है, 1/R में ऐसे ही रखूं फिलहाल, इट इज d/dt ऑफ phi। तो इट इज d/dt ऑफ phi का इक्वेशन दे दिया, इट इज 50t² + 4। अब आप देखिए I इज इक्वल टू 1/R, देन ये हो गया 100t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 0, 100t डिवाइड बाय R विल गिव द करंट। तो I शुड बी इक्वल, तो टाइम जो है आपको 2 सेकंड दिया है, तो मैं ऊपर अब 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकंड पे करंट डिवाइड बाय R। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल शुड बी प्रोवाइडेड एंड दैट इज 400। तो ये और ये चला गया, इट्स 2 2s are 4 and 2 5s are 10। I is equal to 5 ampere is the right answer for this question. 5 ampere is the right answer. 5 एम्पियर तो कोई ऑप्शन ही नहीं। दो जीरो चले गए, 2 2s are 4। अच्छा दो, ये तो सॉरी यहां तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो आई जो है आपका इट इज 100t, t is 2 सेकेंड डिवाइड बाय 400। देखिए 2 0 चले गए, इट इज 2 2s are 4, इट्स 1/2 and 1/2 is nothing, it is 0.5 ampere is the right answer. Sorry. Question number next. A condenser of capacity C is charged to a potential difference of V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. तो पहले आपने इसको चार्ज किया तो पोटेंशियल V1, तो हमारे पास एक कैपेसिटर इनिशियली है, उसका कैपेसिटेंस C दिया है एंड इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V1, और फिर आपने इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया। जब आपने इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, फिर क्या बोल रहा है, तो अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C is charged to a potential difference of V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. The current through the inductor when the potential difference across the condenser is reduced to V2। तो अब कैपेसिटर तो वही है, अब इसका पोटेंशियल V2 हो गया और रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब यहां की तरफ एनर्जी जो है फ्लो हुई, और ये कैपेसिटर आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा। तो आपको बोलना उस वक्त जो इस इंडक्टर में जो करंट है वो कितनी है। तो इनिशियली आपके पास कैपेसिटेंस तो सी ही है, पोटेंशियल इसका V1 था, आपने एक इंडक्टर के साथ इसको कनेक्ट किया और फिर अब यहां की तरफ जो है एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा था, ये आप डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करना स्टार्ट करेगा। तो अब आपको बोल रहा है कि जब कैपेसिटर पे चार्ज, जब कैपेसिटर पे अब पोटेंशियल रिड्यूस होकर V2 हो गया, तो इसका मतलब यहां तो कुछ स्टोर होना स्टार्ट हो गया, उस वक्त इसमें करंट इंडक्टर में कितनी होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको अगर सॉल्व किया जाए, बहुत सारे मेथड्स हैं, दे आर लेंथी मेथड्स, बट द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। आप आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा यहां से यहां तक जब कैपेसिटर ने लॉस किया, क्योंकि अब आप देख लीजिए पहले पोटेंशियल V1 था, फिर पोटेंशियल V2 हुआ, तो डेफिनेटली देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर इज इक्वल गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, क्योंकि हम यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नो लॉसेस, वी बिलीव दैट इन द सर्किट देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ फील्ड है ही नहीं, तो हम
डेफिनेटली इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ, क्योंकि इनिशियली ये पोटेंशियल V1 पे था और फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होकर V2 पे आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा, और वही लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा इंडक्टेंस में, इंडक्टर में। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी तो कैपेसिटर का फॉर्मूला पता होता है, वी नो दैट्स हाफ ऑफ CV², तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए हाफ ऑफ CV1²। सो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ CV1², देन माइनस, क्योंकि इट इज ना रिड्यूस टू दैट मच, तो लॉस हो गया हाफ, देन C, अब इसका पोटेंशियल V2²। तो ये हुआ लॉस, इनिशियली ये था, फाइनली ये है, जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली हमें लॉस देगा, इज इक्वल टू गेन, एंड दैट्स हाफ ऑफ Li², क्योंकि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला है दैट्स हाफ ऑफ Li²। देखिए हाफ हाफ और हाफ चला गया, C यहां कॉमन आएगा, अंदर बचेगा V1² माइनस V2², L में नीचे लाऊंगा इज इक्वल टू I और फिर इस पे I का रूट जो है वो यहां कैरी होगा। तो आंसर शुड बी I इज इक्वल C V1² माइनस V2² डिवाइड बाय L रेज्ड पावर 1/2। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज C V1² माइनस V2² डिवाइड बाय L रेज्ड पावर 1/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। इसको इक्वेशन फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और एंट्रेंस आप जो बिलीव करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन स्पीड से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number next is in an electrical circuit R, L and C and an AC that electrical circuit, ये LCR सर्किट दिया है, एंड एन AC वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो इट्स अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। व्हेन L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is pi/3, the power factor of the circuit। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन में इसको बिल्कुल तैयार किया होता है, तो आप इसको फेजर से जो है करना चाहेंगे, वरना अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में बहुत बार देखा होगा, और इसका आंसर भी कुछ बच्चों को जबान याद होता है। इसका आंसर जो है इट इज 1। सर वाई मैं आपको अभी दिखाता हूं, क्योंकि इसमें एक चीज है जो pi/3 जो है, इसकी वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव के बराबर होता है। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव के बराबर हो जाता है तो सर्किट प्योरली रेजोनेंस में होता है, और जब रेजोनेंट सर्किट होता है तो उसका पावर फैक्टर डेफिनेटली 1 होता है। देख लीजिए, अगर ये होता प्योर रेजिस्टिव एज पर फेजर डायग्राम, तो ये करंट और आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो ये होना चाहिए था R। तो अगर आप देखोगे फेजर डायग्राम में, प्योर रेजिस्टिव में करंट और पोटेंशियल एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर करंट है तो पोटेंशियल ये है, अब मैंने पोटेंशियल के बदले R, क्योंकि हम रेजिस्टेंसेस में फेजर को बना सकते हैं। उसके बाद अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। अब आपने जब L रिमूव किया, अब जब आपने L रिमूव किया तो कैपेसिटिव पोर्शन तो बचा है इसमें, तो अब ये बोल रहा है जब आपने L रिमूव किया फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज pi/3। अब आपने जब L रिमूव किया तो ये कैपेसिटिव सर्किट ही है, दैट इज कैपेसिटिव, दैट इज RC सर्किट हो जाएगा ये। तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटिव में करंट लीड करता है टू द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। तो यहां मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख सकता हूं, और ये प्योर सर्किट के लिए था, बट दिस इज एन इम्प्योर RC सर्किट। तो फेजर डायग्राम में हम सबको पता है, ये आपने पढ़ा होगा अपने क्लासरूम में, कि ये होना चाहिए दैट करंट स्टिल लीड्स EMF बाय एन एंगल, एंड दैट एंगल इज नाउ थीटा, दैट एंगल इज थीटा लेस देन 90, क्योंकि वो प्योर का केस होता है। और अगर यहां से EMF है तो मैं यहां से नेट इंपीडेंस दिखा सकता हूं। तो यहां पे मैं फिर इसको एज पर द लॉज ऑफ वेक्टर फिजिक्स आई कैन शिफ्ट इट हियर, तो XC आपका ये हो जाएगा। तो जब आपने L निकाला तो सर्किट ये रिड्यूस हुआ, और ये थीटा जो है pi/3 के बराबर प्रोवाइडेड है। तो मुझे आप बोलिए इस ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan ऑफ थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, नो सॉरी, tan ऑफ थीटा हियर इज perpendicular, that is XC divided by base, that is R। tan theta is perpendicular divided by base। tan theta जो है आपको tan theta pi/3 दिया है, tan theta आपको pi/3 दिया है, tan theta is provided pi/3, no, tan theta is provided। तो pi/3 जो है pi/3 होता है 60 डिग्री, और tan ऑफ 60 जो है pi/3। जब आपका थीटा जो हो pi/3 है, और दैट्स नथिंग बट 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 होता है √3 इज इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय R। तो आपका XC जो है दैट इज XC इज इक्वल टू √3 टाइम्स R। तो आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड, बोलता है इसके बदले अगर हमने अब कैपेसिटर को रिमूव किया होता तो फिर से फेज डिफरेंस pi/3। अब आपने जब कैपेसिटर को रिमूव किया तो ये इंडक्टिव LR सर्किट बन जाएगा। प्योर केस में
पोटेंशियली लीड करता है, तो मैं यहाँ से इंडक्टिव रिएक्टेंस बनाता हूँ 90 डिग्री, बट ये इम्प्योर सर्किट है, पोटेंशियली लीड करेगा, पोटेंशियली लीड करेगा, तो यहाँ से मैं इंपीडेंस दिखाऊं तो बाय एंगल दैट थीटा एंड दैट इज अगेन गिवन एज π/3, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूं, तो जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो ये बनेगा XL, अगेन tan theta is equal to perpendicular XL by, तो tan theta is equal to perpendicular by base, that's XL by R, तो ये tan of 60 फिर से √3 XL by R, तो XL आपका जो है XL फिर से हो गया √3R, तो जब XL भी वही है, XC भी वही है, तो मैं लिखूं इस सर्किट में आपका XL XC के बराबर है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, यही कंडीशन होता है रेजोनेंस का। और जब सर्किट रेजोनेंस में होता है, इट इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, और जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उस सर्किट में पावर कंजप्शन मैक्सिमम होता है, और पावर फैक्टर जो है वो 1 हो जाता है, दैट इज cos ऑफ थीटा, जिसको आप कहते हो इट इज इक्वल टू 1, तो पावर फैक्टर शुड बी डेफिनेटली इक्वल टू 1। तो इन क्वेश्चंस में जब वो कहता है कि हमने इंडक्टर रिमूव किया तो फिर फेज डिफरेंस π/3 बचा, जब हमने कैपेसिटर रिमूव किया तो फेज डिफरेंस फिर से π/3 ही बचा, तो ये सर्किट प्योरली जो है XL इसमें XC के बराबर आता है, ये रेजोनेंस में होता है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, एंड पावर फैक्टर डेफिनेटली 1 होता है, और इस वक्त पावर कंज्यूमर जो सर्किट में होता है दैट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field this, तो हमने एक conducting circular loop को एक uniform magnetic field में place किया जिसका इतना strongest Tesla है, when its plane is perpendicular to the magnetic field the radius of the loop starts shrinking, again a very important question, shrinking based question, loop का radius shrink हो रहा है इस rate पे, the induced EMF in the loop when the radius is 2 cm, तो solution of this question is that EMF होता है बराबर d∅/dt, और मैं लिख सकता हूँ d/dt of BA, तो B तो इसमें constant है, differentiation से बाहर आएगा, it is d/dt of area and area of the coil is πr², तो मैं लिख सकता हूं area of the coil is πr², तो EMF हो गया बराबर B, इट इज पाई B बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ R² होता है 2R, और इंटरनल डिफरेंशिएशन होता है dr/dt। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए और आप कैलकुलेट कर पाएंगे, B का वैल्यू जो है दैट इज 0.4, देन पाई ही रखिए क्योंकि आंसर में पाई ही है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R, रेडियस ऑफ द कॉइल जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर, दैट्स 2 × 10⁻², एंड किस रेट पे वो श्रिंक कर रहा है दैट इज 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो इट्स 2 × 10⁻³ अब आप देख लीजिए ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, इट इज 32 पाई, और यहाँ 10⁻², यहाँ 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻², और यहाँ पे जो है 10⁻⁻1, तो ये गया 5 5 और 1 हो गया 6, इट इज 6 0.04, सॉरी इट इज 0.04, इट इज 0.04 here, so it is 0.04 एंड देन फिर अपना पाई है, देन मल्टीप्लाइड बाय, देख लीजिए इट इज 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, देन इट इज पाई, तो ये हो गया 10⁻², ये हो गया 10⁻², 4 10⁻³ 10⁻7 हो जाएगा 10⁻7। अब देख लीजिए आप, मैं लिख सकता हूँ EMF इज इक्वल 3.2 पाई × 10⁻⁻6, तो ये होता है माइक्रो, तो EMF इज 3.2 pi microvolt is the right answer for this question. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट is the right answer for this question. Shrinking based question EMI में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A long solenoid has 500 turns, तो लॉन्ग सोलेनॉइड आपको प्रोवाइडेड है और उसके 500 टर्न्स दिए हैं। When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid, तो हर एक टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो इतना है, the self inductance of the coil। तो आपको पता होना चाहिए द टोटल फ्लक्स लिंक्ड, जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा, जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा वो होना चाहिए बराबर Li, टोटल फ्लक्स लिंक्ड शुड बी इक्वल टू Li। टोटल फ्लक्स हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, दैट इज 5 इज इक्वल टू Li। तो हमें अगर L निकालना है तो डेफिनेटली शुड बी टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो एक टर्न के साथ जो फ्लक्स है वो दिया है n, मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिया, तो क्योंकि इसमें 500 टर्न्स है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज प्रोवाइडेड, इट इज 4 × 10⁻³ और करंट सर्किट में दिया गया है 2 एम्पियर, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 10⁻³ × 10⁻³ दैट इज itself 1 should be the answer of this question। तो 1 Henry is the right answer for this question। Question number next,
देखिए a coil of inductive reactance, तो you are being provided inductive reactance, तो XL provided है that is 31 ohm inductive reactance has a resistance, तो R provided है 8 ohm। उसके बाद is placed in series with a condenser of capacitive, तो ये LCR सर्किट हुआ, तो capacitive reactance दिया गया है 25 ohm। The combination is connected to an AC source of 110 volt, तो आपने एक AC source 110 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट किया। The power factor of the circuit is, तो you should know the formula for power factor and that is nothing, power factor cos theta होता है बराबर R by Z। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर और आपने पढ़ा होगा। तो पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल R by Z, R आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 8 और नेट इंपीडेंस ऑफर्ड बाय एन LCR सर्किट इज R स्क्वायर देन प्लस, अब यहां देखना है बड़ा कौन सा है, XL XC से बड़ा है, तो यहां पे लिखूंगा मैं ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आप डिराइव भी कर सकते हो, आपने किया भी होगा, जरूरत नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से निकाल रहा हूं। cos फाई इज इक्वल 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये हुआ 8 8 64 देन इट्स प्लस, ये हो गया 31 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो cos फाई आपका जो है वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 64, 25 में से 31 में से 25 होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये हो गया 100 का रूट हो गया आपका 10, तो cos फाई इज इक्वल 8 डिवाइडेड बाय 10 विच इज नथिंग बट 0.8 शुड बी द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो 0.8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन एन LCR सर्किट R इज इक्वल दिस, तो एक फिर से LCR सीरीज सर्किट है, R आपको 200 ओम दिया है एंड द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, तो वोल्टेज दे दिया है आपको दैट इज 220 वोल्ट इज द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज प्रोवाइडेड है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो जब आपने कैपेसिटेंस निकाला तो करंट लैग बिहाइंड करेगा वोल्टेज को 30 डिग्री से। ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो फिर से वही हुआ जो मैंने अभी आपके साथ पीछे डिस्कस किया था कि जब आपने कैपेसिटेंस निकाला तो 30 डिग्री से ही आपका लैग और लीड हो रहा है, और जब इंडक्टर निकाला फिर से वही हुआ, तो हमें द पावर डिसिपेटेड इन द LCR सर्किट निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन एन LCR सर्किट। तो पावर डिसिपेटेड के लिए जो पावर डिसिपेटेड LR सर्किट में होगा इस वक्त आप देख लीजिए, क्योंकि सेम लैग और लीड कर रहा है, जब सेम लैग और लीड करता है तो सर्किट इज इन रेजोनेंस, तो मैं लिखूं सर्किट इज इन रेजोनेंस। सर्किट एक तो रेजोनेंस में होता है, जब सर्किट रेजोनेंस में होता है तो पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम एंड इट इज VRMS इनटू IRMS ये होता है। बट IRMS तो हमें V दिया है और R प्रोवाइडेड है, तो मैं लिखूंगा इट इज VRMS इनटू VRMS डिवाइडेड बाय R। तो पावर हो गया बराबर VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। VRMS स्क्वायर हो गया 220 इनटू इट इज VRMS स्क्वायर हो गया आपका इट इज 220 इंटू 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस सर्किट का दे दिया आपको दैट इज 200, 20 निकल जाएंगे, 2 11 22, तो जब आप 22 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज 22 एंड देन इट्स 2 इंटू 2, तो ये हो गया 242 वाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 242 वाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका लॉजिक वही है कि जब आपने इंडक्टर निकाला तो उसी जो है उसी लैग और लीड से वही जब कैपेसिटर निकाला वही एंगल फिर से रिपीट हुआ, तो ये बिल्कुल होता है क्लियर कि सर्किट रेजोनेंस में है, क्योंकि तभी बराबर लैग और लीड दिया जाता है आपको। और जब रेजोनेंस में सर्किट हो, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम होता है दैट्स VRMS IRMS, क्योंकि cos फाई 1 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, तो आप फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, तो ये आप सबको पता होना चाहिए दैट पॉइंटिंग वेक्टर होता है बराबर 1/μ0, देन इट इज 1/μ0 टाइम्स E क्रॉस B is pointing vector and this is nothing but it shows us the direction of propagation of wave। तो E क्रॉस B is the right answer for this question, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A current this, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रखा था मैंने इसमें, और दूसरा ये है दैट a current I equal 3 + 8 sin 100t is passing through a resistor of resistance 10 ohm, the effective value। तो effective value itself means हमें RMS वैल्यू निकालना है, हमें RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन आपको दिया है इट इज 3 + 8 sin of 100t, तो हमें इसका RMS वैल्यू निकालना है। देखो इसमें निकालने का तरीका ये होता है, इसमें RMS वैल्यू निकालने का तरीका इस इक्वेशन हमेशा पहले स्क्वायर करूं, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा I स्क्वायर, ये बनेगा 9, तो
तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये बनेगा 64, 8 8 64 और ये बनेगा साइन स्क्वायर 100t प्लस 2ab, तो 6 8 48, ये हो गया 48 साइन ऑफ 100t। पहले मैंने इसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर खत्म हो गया यहाँ पे, फिर मैं इसका मीन लूंगा, मीन होता है एवरेज, तो एवरेज के लिए मैं ऊपर बार रखता हूँ इस पे, तो ये बार मतलब मैं एवरेज लेने वाला हूँ, तो ये आई स्क्वायर बार इज इक्वल, तो कांस्टेंट का बार कुछ नहीं होता, वो वही वैल्यू होता है प्लस 64 का, तो 64 ही हो गया। बट आप सबको पता होना चाहिए दैट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 100t, तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हमेशा 1/2 होता है, और साइन का अगर साइन 100t है, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू जो है वो हमेशा जो है आपका 0 होता है। तो एवरेज वैल्यू और अ कंप्लीट साइकिल फॉर साइन एंड कॉस फंक्शन इज 0, वाइल साइन स्क्वायर का वैल्यू या कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर 100t का वैल्यू एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, और ये तो पहले ही खत्म हो गया, तो 232 जा 64, तो आई स्क्वायर बार जो आपका है वो आया 41, 32 प्लस 9 इज 41। अब स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया, अब लास्ट में रूट लूंगा, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, तो आपके पास डायरेक्टली IRMS आएगा एंड दैट विल बी रूट ऑफ 41, क्योंकि मैंने दोनों साइड से रूट लिया तो यहाँ रूट आया और यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल होके आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन एन LCR सर्किट इफ L इज इक्वल दिस, तो LR सर्किट LR सर्किट में L आपको 0.4 बाई पाई हेनरी दिया गया है एंड R भी दिया गया है दैट इज 30 ओम, ए सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, तो पोटेंशियल आपको 200 वोल्ट प्रोवाइडेड है एंड 50 साइकिल्स फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड, तो फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है, cycles per second means itself hertz. Find impedance and current in the circuit. We have to calculate impedance. तो LR सर्किट में आपको पता होना चाहिए impedance होता है बराबर रूट ऑफ इट इज R स्क्वायर प्लस X L का होल स्क्वायर, तो XL का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर हो गया आपका 30 स्क्वायर XL हो गया बराबर, XL में यहां डिराइव करता हूं, XL कितना हो गया, XL होता है बराबर ओमेगा L, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इज 50 और L दिया है आपको 0.4 डिवाइड बाय पाई। देखिए पाई और पाई यहां से निकल गया, तो ये हो गया पहले 420 एंड इट इज 40 ओम, तो XL जो है पहली फुर्सत में निकाल दो, ये हो गया 40, ये हो गया आपका Z इज इक्वल, ये हुआ 900 प्लस 1600 दैट इज 2500 और 2500 का रूट होता है 50। तो हमने जब इंपीडेंस निकाला दैट इज 50, एक ही ऑप्शन यहां पे है 50 ओम, तो इंपीडेंस आ गया। करंट निकालने का तो जो है हमारा फॉर्मूला है दैट्स V बाई R, V बाई रेजिस्टेंस, और V आपको दे दिया है 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस नेट इंपीडेंस होता है दैट इज 50, 0 0 कट गया, 5 4 20, I इज इक्वल 4 एम्पियर, तो ये होना चाहिए 50 ओम 4 एम्पियर, सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in an electromagnetic wave the amplitude of electric field is, तो E naught आपको provided है that is 1 volt per meter, the frequency of the wave is this, frequency provided है, और the wave is propagating along z axis, the average energy density of electric field, तो average energy density of electric field जब भी वो बोले तो ये आपको पता होना चाहिए, it is 1/4 epsilon naught E square, तो एनर्जी होता है 1/2 epsilon naught E square है ना, बट इट्स एवरेज, तो एनर्जी डेंसिटी अगर आपको पूछता, सिर्फ एनर्जी डेंसिटी पूछता तो यहाँ आता फॉर्मूला 1/2 epsilon naught E स्क्वायर, बट जब उसने लिखा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज देने का मतलब होता है 1/2 और आ जाता है इधर, ये बनता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना है, ई नॉट स्क्वायर तो हमें पहले ही प्रोवाइडेड है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गया बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12, 8.8 इंटू 10⁻12 और ई नॉट स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, क्योंकि इसका पीक वैल्यू 1 प्रोवाइडेड है, तो इट इज 4 2 8, 4 2 8, आंसर शुड बी 2.2 इंटू 10⁻12 शुड बी द राइट आंसर, 2.2 into 10⁻12 is the right answer for this question. Very important क्योंकि average energy density नहीं पूछा है। उसके बाद voltage between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance 1 microfarad is changing at a rate of this. तो capacitance provided है, it is 1 microfarad और dV by dt provided है, dV by dt आपको provided है, variation of voltage with time is 5 वोल्ट पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज dq by dt, और आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर है, इट इज d by dt ऑफ q होता है बराबर cv, क्योंकि फॉर कैपेसिटर q इज न्यूमेरिकली cv, तो I हो गया बराबर c बाहर आएगा, ये बनेगा dv by dt, तो I आपका c जो है दैट्स 1 माइक्रोफैरड, तो इट्स 1 मल्टीप्लाइड बाय dv by dt दैट इज 5 into 1 is 5, it is micro ampere should be the right answer of this question, 5 micro ampere should be the right answer of this question. Question number next,
Out of the following options, which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? तो this is how we would produce electromagnetic wave in lab. तो आप सबको पता होना चाहिए oscillating charges या accelerating charges are responsible for creating an electromagnetic wave. तो chargeless particle बिल्कुल गलत है. Accelerating charge is the right answer. A charge moving with constant velocity बिल्कुल नहीं. A stationary charge बिल्कुल नहीं. Accelerating or oscillating charges are responsible for creating an electromagnetic wave. उसके बाद which of the following statements is false for the properties of electromagnetic wave? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट बोलना है. तो मतलब बाकी करेक्ट है, एक इसमें गलत होगा. बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम. ये बिल्कुल सही है. द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स. बिल्कुल एनर्जी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल. बिल्कुल गलत है क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर. ये गलत है क्योंकि पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होते हैं. दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन. बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर for this question. Question number next is the electric field part of an electromagnetic wave in a medium is represented by the equation. तो Ex में 0 है, Ey जो है Ey में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड है, Ez जो है 0. द वेव इज तो मूविंग अलोंग एक्सट्रैक्शन विद फ्रीक्वेंसी. तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन प्रोवाइडेड है. इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पीक वैल्यू ये है, देन कॉस ऑफ ये होना चाहिए यहाँ पे ओमेगा टी. दिस इज ओमेगा टी, देन इट्स माइनस दिस इज के एंड एक्स. बिल्कुल ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो यहां पे जो x है आपका, तो यहां जब माइनस आता है तो ये कंफर्म होता है, आपने वेव्स में पढ़ा होगा कि ये पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन में प्रोपोगेट करने वाला है क्योंकि प्लस आ गया यहां पे x, यहां माइनस है. तो दिस इज द इंडिकेशन कि यहां नेगेटिव आने की वजह से और ये पॉजिटिव होने की वजह से यहां पे वेव जो है पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन में प्रोपोगेट कर रही है. तो मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो बिल्कुल पहला मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन ये भी हो सकता है. मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सट्रैक्शन ये गलत है. नेगेटिव एक्सट्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन है. मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन ये भी गलत है क्योंकि हमने यहां से प्रेडिक्ट किया वेव कहां से प्रोपगेट हो सकती है. तो पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन में प्रोपगेट हो सकती है. पहले दो ऑप्शंस में आंसर है. अब आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा को इस फैक्टर के साथ हम जो है इक्वेट करेंगे. टी के बदले जो ओमेगा है, तो ओमेगा आपका यहां पे दिया है 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर 6. 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर 6. तो ओमेगा होता है बराबर 2 पाई इंटू न्यू इज इक्वल 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर 6. 2 पाई चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर 6. तो फ्रीक्वेंसी का पार्ट आ गया 10 रेज़्ड पावर 6. फ्रीक्वेंसी का पार्ट इधर भी 10 रेज़्ड पावर 6, इधर भी 10 रेज़्ड पावर 6. तो हमें के पे जाना पड़ेगा. तो अब आप देख लो के जो है कि आपका k जो है वो दिया है बराबर पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -2. पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -2 और k होता है बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -2. तो हमें लैम्डा निकालना है तो पाई और पाई चला जाएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 डिवाइड बाई 10 रेज़्ड पावर -2 एंड दैट विल बी 200 मीटर. तो फ्रीक्वेंसी 10 रेज़्ड पावर 6 और वेवलेंथ 200 मीटर. फ्रीक्वेंसी 10 रेज़्ड पावर 6, वेवलेंथ 200 मीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज during the propagation of electromagnetic waves in a medium. तो propagation of electromagnetic waves in a medium में हमें बोलना है कौन सा true है. Electric energy density is equal to the magnetic energy density because energy is equally distributed between electric and magnetic field. So this is the right answer. Both electric and magnetic field densities are 0. बिल्कुल गलत है. तो फिर क्या वेव है वो वेव में एनर्जी तो स्टोर्ड रहती है. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल. बिल्कुल गलत है. इक्वली स्टोर्ड होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ. बिल्कुल गलत है. एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे वो एनर्जी डेंसिटी हो या एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहते हैं. उसके बाद the magnetic field in a wave in a plane EM wave was given by this. तो magnetic field का इक्वेशन दिया, find the average energy density corresponding to the electric field. देख लीजिए यहाँ पे मैं यही ट्रिक यूज कर सकता हूँ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया और एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ रहा है. तो मैं इसमें यूज करूँ कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो बराबर होता है. तो अगर इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का दिया है तो हम उसी से सॉल्व करेंगे और वो होता है बराबर B0² डिवाइड बाई 4 μ0. वरना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग जाना पड़ता. तो आई एम यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ही है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज एनर्जी डेंसिटी में यूज कर सकता हूं. तो B0² जो है तो B0² हो गया पीक वैल्यू. तो यहां दिया है इट इज 200 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 का स्क्वायर आ गया क्योंकि माइक्रो में दिया है डिवाइडेड बाय 4 μ0. आप सबको पता है इट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -7. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अभी सोल्यूशन जो है मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि आप इसको
सॉल्व कर सकते हो, तो इट्स आंसर इज 8 मिली जूल पर क्यूबिक मीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 मिली जूल पर क्यूबिक मीटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स हाउ ये आसान हो जाता है। उसके बाद स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विद वेलोसिटी 0.5 रूट जी आर। तो सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस ट्रैक एज शोन द फिगर, द ब्लॉक लूजेस द कांटेक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट सी। तो यहां से एक बॉडी जा रहा है जिसका वेलोसिटी दिया है और वो वेलोसिटी दिया है 0.5 रूट ऑफ जी आर। तो बोलता है यहां कांटेक्ट लॉस करता है। कांटेक्ट लॉस करने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहां पे जीरो होता है, क्योंकि कांटेक्ट जो है वो लॉस हो गया। जब कांटेक्ट लॉस हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, और हमें पता है ये इन्वर्टेड सर्कुलर पाथ है, तो इसमें द ब्लॉक लूजेस द कांटेक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट सी, कैलकुलेट एंगल थीटा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है दैट डायरेक्टली आप वो कैलकुलेट कर सकते हो थीटा, दैट इज यू स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाय 3gr। ये आपने अपने क्लासरूम में पढ़ा होगा, क्लासरूम कोर्सेज में पढ़ाया जाता है कि सर्कुलर मोशन में अगर आपको ये निकालना हो कि ये चूंकि इन्वर्टेड है, अगर ये नीचे सर्कल होता तो यहाँ माइनस होता, चूंकि इन्वर्टेड सर्कल है दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आया। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, कॉस थीटा डायरेक्टली निकाला जा सकता है, यू स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाय 3gr। अब हम कॉस थीटा का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस, यू स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर हो गया, रूट कट जाएगा gr, 0.5 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और ये आ जाएगा gr। तो इसका स्क्वायर आ गया, प्लस फिर है आपका 2gr डिवाइडेड बाय नीचे होता है 3gr। तो gr कैंसिल, 4 2 8 प्लस 1 इज 9, 9 डिवाइडेड बाय 12, 3 3 9, 3 4 12। तो cos थीटा आ गया 3/4, थीटा हो गया बराबर cos इनवर्स 3/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। cos इनवर्स 3/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड 5 तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स दिए 100 एंड 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो आपका एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आपने इसका एरिया लिख दिया। इज प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.2 टेस्ला। द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल जो है वो थीटा 60 डिग्री प्रोवाइडेड दिया विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो आपको पता होना चाहिए फ्लक्स लिंक्ड होता है बराबर डायरेक्टली BA cos थीटा, और हर एक चीज प्रोवाइडेड है। फ्लक्स निकालना है, बी दिया है 0.2, एरिया दिया है 5 × 10⁻⁻⁴, cos 60 होता है 1/2, और नंबर ऑफ टर्न्स में इसमें मल्टीप्लाई करता हूं n, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 100। आप इसको सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप देखेंगे ये बना 0.1 और 100 होता है 10, तो ये हो गया 10, ये होगा 5 × 10⁻³ वेबर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5 × 10⁻³ वेबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी कॉइल हैज 100 टर्न्स। तो मैं साथ साथ ही लिखता हूं, प्राइमरी कॉइल की 100 टर्न्स है, तो प्राइमरी कॉइल के आपके पास जो है 100 टर्न्स दिए गए हैं, 100 टर्न्स एंड द सेकेंडरी हैज, तो NS भी दिया गया है, NS में दिया गया है आपको 200 टर्न्स। फिर क्या लिख रहा है, प्राइमरी कॉइल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर ऑफ 50% एफिशिएंसी। तो नीटा दिया है 50% हो गया 50/100, एंड नीटा इज प्रोवाइडेड 1/2, इज कनेक्टेड टू एन AC ऑफ 220 वोल्ट्स। तो प्राइमरी का EP दिया है 220 वोल्ट्स एंड 10 एम्पियर करंट। तो IP दिया है आपका 10 एम्पियर करंट। तो हमें निकालना क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें अब बचता क्या है इसमें, अगर मैं इक्वेशन यहां लिखूं, ट्रांसफार्मर का आपको एक्चुअल इक्वेशन पता होना चाहिए, ES/EP इज इक्वल NS/NP और मल्टीप्लाइड बाई नीटा टाइम्स IP/IS। मैंने अपने क्लासरूम में देखा है कि बच्चों को फॉर्मूला याद होता है ES/EP इज इक्वल NS/NP इज इक्वल IP/IS। वो तब होता है जब एफिशिएंसी 100% हो। तो कभी आप वो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, आप ये याद करेंगे ES/EP इज इक्वल NS/NP इज इक्वल नीटा टाइम्स IP/IS, क्योंकि नीटा इज एफिशिएंसी। न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब एफिशिएंसी 90%, 80%, 50%, तब ये नीटा जो है आपको पता नहीं होता कि कहां प्लेस करना है। तो पहले हमें जो है ES हमें वोल्टेज इन सेकेंडरी और करंट इन सेकेंडरी निकालना होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट ही मिसिंग है। तो आप देख लीजिए, आप ES में निकाल सकता हूं यहां से, ES डिवाइडेड बाय EP आपको प्रोवाइडेड है 220 का वोल्टेज है। उसके बाद NS इज प्रोवाइडेड, NS 200 दिया है, डिवाइडेड बाय NP आप देख लीजिए 100 दिया है। 0 कट के ES आपका जो है डायरेक्टली 220 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। तो ES आ गया 440 वोल्ट होना चाहिए वोल्टेज इन सेकेंडरी। 440 वोल्ट का वोल्टेज होना चाहिए सेकेंडरी में। तो ऑप्शन जिसमें वोल्टेज 440 हो, तो दो ऑप्शंस तो कैंसल आउट हुए।
अब करंट निकालना है। अब करंट निकालने के लिए हम ये वाला हिस्सा जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस पार्ट NS दिया आपको 200, NP दिया आपको 100 इज इक्वल नीटा दिया है 1/2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IP आपको दिया है 10, IS आपको निकालना है। तो मुझे बोलिए ये और ये कट गया, ये हो गया 4, IS हो गया बराबर 10 डिवाइड बाई 4 और वो होता है 2.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो 2.5 एम्पियर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 100 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर ऑफ दिस। तो रेजिस्टेंस भी 100 ओम, कैपेसिटेंस भी 100 ओम are connected in a series across a 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, तो 50% charged का मतलब होता है 50% charged का मतलब displacement current is present, that's why 50% charge। जब fully charged होगा तो displacement current 0 होगा, तो इसका मतलब displacement current is present। हमें निकालना है peak value of the displacement current, we have to calculate the peak value of the displacement current। तो ये आपका एक RC सर्किट है, तो करंट निकालने के लिए पहले इंपीडेंस निकालेंगे और इंपीडेंस होता है बराबर R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। तो Z इज इक्वल R स्क्वायर वो भी 100 दिया है प्लस XC भी दिया आपको 100, तो 100 स्क्वायर होता है बराबर इट इज 100√2 ओम। तो इंपीडेंस जैसे आ गया, अब आप दैट करंट हमें पीक वैल्यू निकालना है, बट हम सबको पता है वोल्टेज आपको जो दिया गया है वो RMS वैल्यू होता है, तो IRMS होता है बराबर ERMS डिवाइडेड बाय Z। तो ERMS आपको दिया गया है दैट इज 220 डिवाइडेड बाय Z, Z इज 100 डिवाइडेड बाय √2। बट हमें RMS वैल्यू ऑफ करंट नहीं निकालना है, हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, इसका ख्याल रखिए, यहां गलती करता बच्चा। RMS वैल्यू हमेशा होता है बराबर I0 बाय √2 इज इक्वल, तो यहां 0 0 कट के ये हो गया ऊपर 2.210 से डिवाइड करके डिवाइड बाय √2 कट के द पीक वैल्यू शुड बी 2.2 एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज in an electromagnetic wave in free space the root mean square value of the electric field is this। तो हमें ERMS value of electric field दिया है, the peak value of the magnetic field। तो जैसे आपको RMS value दिया है तो हमें पता है कि C का वैल्यू होता है बराबर peak value of electric field to the peak value of magnetic field। तो हम magnetic field निकाल सकते थे बट peak value of electric field चाहिए। हमें ERMS वैल्यू दिया है, तो ERMS वैल्यू जो है हमें दिया है 6, बट ERMS वैल्यू होना चाहिए peak value डिवाइडेड बाय √2, ये आपने पढ़ा होता है, और peak वैल्यू हो गया बराबर 6√2। अब हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें peak वैल्यू मिला, C होता है बराबर 3 × 10⁸, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6√2 डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट। ये हुआ 3 2 6, तो B0 डायरेक्टली हो गया बराबर 2√2 × 10⁸8। 2√2 होता है बराबर B0 इज इक्वल 2 × इट इज 1.414 × 10⁸8। तो यू आर 2 4 8, तो इट इज 8 2 8 2, देन इट्स 10⁸ it is 8, 10⁸8, so it should be 2.82 × 10⁸8, 2.82 × 10⁸8, मैंने कहीं 10⁸8, हाँ बिल्कुल ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 शुड बी द आंसर। 2.83 × 10, 2.83 × 10⁻⁸8 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2.83 × ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी बच्चा गलती करता है क्योंकि पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू होता है, उसने RMS वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया, आप इसको इमीडिएटली पीक वैल्यू में डेवलप करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इज दिस, व्हाट इज द B। तो E दिया है, इसमें पीक वैल्यू ही दिया है, तो हमें पता है C होता है बराबर E0 बाई B0, और हमें इस वक्त जो है हमें निकालना क्या है, E दिया है C दिया है, तो व्हाट इज द B, हमें B निकालना है, तो B0 निकालना है, तो ये हुआ E0 डिवाइडेड बाई C। E0 दिया है 6, C दिया है 3 × 10⁸8, ये हमको पता होना चाहिए, तो 6.3 दिया है एक्चुअली यहाँ पे, तो इट इज 3 2 6, 3 1 3, तो आंसर शुड बी 2.1 × 10⁻⁻8 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2.1 × 10⁻⁻8 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एज शोन द फिगर अ बार मैग्नेट पासेस थ्रू अ कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर वायर, देन तो ये बार मैग्नेट जब आप एक कॉइल से पास कराओगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जब बार मैग्नेट कॉइल से पास कराओगे तो जब बार मैग्नेट नजदीक आएगा तो इसका फ्लक्स वैरी होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो छोड़िए आप, फ्लक्स वैरी करेगा तो डेफिनेटली EMF डेवलप होगा। अब जब डेफिनेटली EMF ओपन डेवलप होगा, बट यहाँ पे ये सर्किट ओपन है तो करंट नहीं होगी, तो EMF विल बी देयर बट करंट विल बी जीरो, EMF विल बी देयर बट करंट विल बी जीरो, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड, बिल्कुल गलत, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड, गलत, EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बट करंट बट नॉट द करंट, बिल्कुल, क्योंकि EMF तो डेवलप होगा, ओपन सर्किट की वजह से करंट नहीं होगा, करंट विल बी इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड, बिल्कुल गलत है, ईएमएफ नहीं है, तो करंट कहां से आया? क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट इज अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल, स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो आपके पास एक टर्न टेबल दिया गया है, आपके पास एक टर्न टेबल दिया गया है, सो दिस अ टर्न टेबल, और इसका रेडियस जो है दैट रेडियस पे के हिसाब से आप एक 9 सेंटीमीटर दूरी पे, 9 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है, तो अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे आपने कॉइन प्लेस की है जिसकी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, तो वी आर हैविंग अ कॉइन हियर। फिर क्या पूछ रहा है? इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड इट विल जस्ट स्लिप इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप इसकी जो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन होगा, मान लो ये टर्न टेबल ओमेगा से जा रहा है, अगर आप इसकी स्पीड को ट्रिपल कर दोगे तो ये कॉइन जो है निकल सकता है। हमें कितनी मैक्सिमम स्पीड रखनी है, एंगुलर स्पीड रखनी है ऑफ द टर्न टेबल, इट विल जस्ट स्लिप इफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये टर्न टेबल का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा अपने प्रिपरेशंस में, यू मस्ट हैव डन इट, कि इस पे इस कॉइल पे जब आप यहाँ बैठोगे, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठोगे, तो आपको लगेगा कि इस कॉइल पे बाहर की तरफ एक सीडो फोर्स है, और वो सीडो फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और उस सीडो फोर्स को रोकने के लिए आपको जो है, सीडो फोर्स को रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली होना चाहिए, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है बराबर म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो सीडो फोर्स बाहर की तरफ जो कॉइल को बाहर लेना चाहता है, तो अंदर की तरफ रोक जो आ रहा है इसको, दैट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सीडो फोर्स बराबर होना चाहिए, तो म्यू एस इनटू एन, एन होता है एम जी, इज इक्वल, ये हो गया एम, पहले मैंने ओमेगा स्क्वायर स्पीड मानी और रेडियस था 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने स्पीड को, एंगुलर स्पीड को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो m ये हो गया 3 ओमेगा का स्क्वायर। अब आपको बोलना है क्या डिस्टेंस पे कॉइन को रखोगे कि वो नहीं गिरेगा, तो म्यू एस में कोई चीज नहीं, एम जी में कोई चीज नहीं। तो जब आपने एंगुलर स्पीड को ट्रिपल टाइम्स बढ़ा दिया, तो आपको बोलना है कि डिस्टेंस कितनी है जहां पे रख के ये आप स्लिप होने से बचा सकते हो। तो म्यू एस एम जी पहली फुर्सत में उड़ा दो, एम उड़ गया, ओमेगा स्क्वायर उड़ गया, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 9, 3 3 9 आर। तो मुझे बोलिए आप 9 9 कैंसिल होके आर हो गया बराबर 1 सेंटीमीटर। अब जो है आप रख सकते हो और ये बचा रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन अप्लाइंग द इक्वेशन फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइडेड है हमें, एंड दैट्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। द रेडियन मेजर, देख लीजिए आप, हमें रेडियन मेजर के बारे में बोल रहा है, मस्ट बी यूज्ड फॉर बोथ अल्फा एंड ओमेगा एंड अल्फा मे बी यूज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है दैट इज डी थीटा बाई डी टी, और हम इसका ऐसा यूनिट लेते हैं रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट। तो अगर आप रेडियन पर सेकंड ओमेगा का लेंगे, तो यहाँ पे भी रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे भी रेडियन पर सेकंड, और ये हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टी टी कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन मेजर में भी लिया जा सकता है, दैट इज ऐसा यूनिट। बट देयर इज अनदर यूनिट दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन पर सेकंड, दैट इज अनदर यूनिट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यू कैन यूज बोथ, रेडियन पर सेकंड भी आप यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल में रेडियन पर सेकंड से दिया, कभी आपका रेवोल्यूशन पर सेकंड भी दिया जा सकता है। यहाँ पे भी रेवोल्यूशन पर सेकंड, यहाँ पे भी रेवोल्यूशन पर सेकंड, यहाँ आएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड काट के बराबर इक्वेशन जो बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं दैट इन फिजिक्स व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। अगर ये रेडियन पर सेकंड है तो डेफिनेटली रेडियन पर सेकंड है, ये भी रेडियन पर सेकंड है, मगर अगर ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो ये भी रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये भी रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो हम रेडियन पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, हम रेवोल्यूशन पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, द रेडियन मेजर मस्ट बी यूज्ड, मस्ट गलत है, मे बी यूज्ड फॉर बोथ ओमेगा एंड अल्फा, क्योंकि आप ओमेगा के लिए भी यूज करोगे, अल्फा के लिए भी यूज करोगे, नो वरीज इन दैट, बट मस्ट जरूरी नहीं, क्योंकि अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो आप वो भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A capacitor has been charged by a DC source। आपने एक कैपेसिटर को डीसी सोर्स से चार्ज कर दिया है। फिर क्या पूछ रहे हैं? What are the magnitude of conduction and displacement current when it is fully charged? तो fully charged ने यहाँ गेम बदल दिया। जब fully charged हुआ, अगर आपको याद होगा पीछे मैंने पढ़ाया आपको, जब fully charged कैपेसिटर होता है, fully charged कैपेसिटर होता है तो उसमें displacement current 0 होता है। तो fully charged के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, fully charged के वक्त displacement current 0 होता है, और हमें पता है कि displacement current हमेशा conduction current के बराबर होता है, और वो दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे। तो ID is equal to IC is equal to 0 is the right answer for this question। Question number next is a
रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ दिस, तो रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, आपका रेजिस्टेंस 300 ओम दिया गया है एंड इंडक्टेंस L दिया है 1/π हेनरी, इट्स प्रोवाइडेड, आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट, दिस इज प्रोवाइडेड एंड 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो 200 हर्ट्ज जो है इसमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट विल बी, हमें फेज डिफरेंस निकालना है वोल्टेज एंड करंट में। तो ये LR सर्किट है, हमें फेज डिफरेंस निकालना है। हम सबको पता है कि फेज डिफरेंस के लिए आप डायरेक्टली tan phi इज इक्वल XL/R, ये हम फेजर से भी कर सकते हैं बट फॉर्मूला भी याद होता है, तो tan phi हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। XL हो गया बराबर ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, ओमेगा होता है 2π न्यू, तो 2π न्यू आपको दिया गया है दैट इज 200 2π न्यू इंटू L, L दिया है आपको 1/π, L इज प्रोवाइडेड 1/π डिवाइडेड बाय R, R का वैल्यू आप देख लीजिए दैट इज 300। देखिए पाई और पाई चला जाएगा ऊपर 400, तो tan ऑफ फाई इज इक्वल 400 डिवाइडेड बाय 300, 0 0 कट के 5 हो गया बराबर tan इनवर्स 4/3 is the right answer of this question. tan इनवर्स 4/3 is the right answer. हम चाहे तो फेजर से बना सकते हैं, चाहे आपको फॉर्मूला याद है, मगर मसला है आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the breaking tension of a string is 10 Newton. A particle of mass 0.1 kg tied to it is rotated along a horizontal circle of radius this. Horizontal circle means a circle like this. तो horizontal circle ये है और एक string के साथ आपने एक particle को connect किया है जिसका breaking tension जो है वो 10 Newton दिया गया है, breaking tension 10 Newton. A particle of mass 0.1, इस particle का mass 0.1 kg प्रोवाइड किया गया है along horizontal of radius 0.5 मीटर, इसका रेडियस जो है वो 0.5 मीटर दिया है। The maximum speed with which the particle can be rotated, तो यहाँ मैक्सिमम स्पीड जब आएगा, यहाँ मैक्सिमम स्पीड कितना आएगा कि कैन बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ जब ये मैक्सिमम स्पीड से घूमेगा तो यहाँ पे जब आप यहाँ बैठोगे तो यहाँ पे सीडो फोर्स डेवलप होगा mv²/r और अंदर की तरफ होगा डेवलप। जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली यहाँ स्ट्रिंग में ब्रेकिंग टेंशन अंदर की तरफ, और यही टेंशन जो है, यही ब्रेकिंग टेंशन हमें कैलकुलेट जो है ये दिया गया है। आपको बोलना है कि जब यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी, कंसेप्ट का पार्ट ये है, तो यहाँ ब्रेकिंग टेंशन, तो ब्रेकिंग टेंशन शुड बी बैलेंस्ड बाय द सीडो फोर्स, तो मैं लिखूंगा ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू mv²/r, तो v हमें निकालना है, तो ये हुआ v इज इक्वल टू r/tb डिवाइडेड बाय m और उसका रूट r दिया गया है, r आपको प्रोवाइडेड है, r इज 0.5, tb आपको 10 दिया है और m जो है वो है 0.1, पॉइंट कट जाएगा, तो रूट ऑफ 50 मीटर पर सेकंड शुड बी द राइट आंसर, रूट ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ टेंशन को बैलेंस किया सीडो फोर्स ने, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये यूसीएम है, वी कॉल दिस एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीबी, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, बिल्कुल गलत, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन वेक्टर चेंज करते हैं, तो एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। देखिए स्पीड तो कांस्टेंट होता है बट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, बट वेलोसिटी चेंज बिल्कुल गलत। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के वेलोसिटी वेक्टर चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज होता है। बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो यूसीएम में बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर चेंजिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आप यहाँ की तरफ लेंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की तरफ लेंगे और ये उनके बीच में थीटा दिया है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल ये कुछ बच्चों को ऐसे ही ना याद होता है, इसका आंसर है पैराबोला, इसका आंसर है पैराबोला, बट यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड जो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड जो है, तो स्पीड को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट चीजों को रिजॉल्व करने से कोई फायदा नहीं। स्पीड को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक कंपोनेंट आएगा ux, दैट विल बी u cos थीटा, हमें पता है, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से आएगा दैट विल बी ui, ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। तो u हो गया ux और uy, तो अब आप इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन हम लिख सकते हैं s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो s x के लिए मैं यूज करूं तो x के लिए डिस्प्लेसमेंट x हो गया, u जो है ux हो गया uxc, देन इट इज t प्लस हाफ ऑफ a जो है ax हमारा दिया गया है क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, डेफिनेटली इट इज a, देन इट इज t², इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम इसी इक्वेशन को y पे यूज करें तो y पे यूज करने के लिए तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल uy डेफिनेटली है वहां, uy है, देन मल्टीप्लाइड बाई t, क्योंकि टाइम तो सेम होता है, प्लस अब ay तो है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो वो प्लस 0
है तो y का इक्वेशन हो गया u y t। तो यहां से t हमारा आ जाएगा, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा होगा, तो t होता है y बाई u। अगर मैं इसमें ड्रॉप करूं तो x हो गया बराबर ux, t के बदले मैं लिखूं y बाई u y एंड प्लस हाफ ऑफ a, तो टी स्क्वायर के बदले इट इज y स्क्वायर बाई u y स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहां पे x और y, x लीनियर पावर में, y स्क्वायर पावर में, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो है पैराबोलिक ग्राफ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो आंसर शुड बी पैराबोलिक। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने यहाँ से टाइम निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस अलग किया, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस अलग किया और टाइम यहाँ ड्रॉप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एंड वाई में डेवलप होने का मतलब कि पाथ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, पाथ पैराबोलिक होना चाहिए। उसके बाद पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ रेडियस 3 मीटर इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दिया गया है, दैट इज गिवन एज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब बाई 3। दिस इज प्रोवाइडेड। हमें निकालना क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इक्वल 2 सेकंड। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। अब इसमें ये सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो दो एक्सेलरेशंस होंगी, एक सेंट्रीपिटल दूसरी टेंजेंशियल, और रिजल्टेंट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे हमें वेलोसिटी मिलेगी और डिफरेंशिएशन करने पे स्क्वायर नीचे आएगा, 2 2 कट जाएगा तो ये बनेगा t प्लस यहाँ 3 3 कट जाएगा तो t स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डेफिनेटली इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशंस होती है, एक टेंजेंशियल आपको डायरेक्टली dv बाई dt से मिलेगा, टेंजेंशियल आपको डायरेक्टली dv बाई dt से मिलेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस इट इज 2t, तो 2t। और अब 2 सेकंड पे आप इसमें t जो है पुट t इक्वल 2 सेकंड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस 2t फॉर t इक्वल 2 सेकंड। अगर t इसमें 2 सेकंड ड्रॉप किया जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया 1 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 1 इज 5, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 5 मीटर पर सेकंड। मगर हमें टेंजेंशियल नहीं, हमें टोटल निकालना है। अब ये टेंजेंशियल है तो सेंट्रीपिटल, आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली v स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। तो v स्क्वायर हो गया t इसका स्क्वायर v स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर। तो मैं इसमें यहाँ पे पुट करूंगा t 2 सेकंड के बाद ही है, तो v आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 2, v हो गया 6, तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय r। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस दिया गया है 3, तो ये हुआ 36 डिवाइड बाई 3, तो 12 या 36, तो 12 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डेफिनेटली होना चाहिए इसका स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हुआ, तो a इज इक्वल 5 स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होता है 144, दैट इज रूट ऑफ 169, और रूट ऑफ 169 13 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 13 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ ये पता चला था वेलोसिटी से कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दो एक्सेलरेशंस एंड देयरफॉर अ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल p विल बी इन एन इक्विलिब्रियम इनसाइड अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो इक्विलिब्रियम है, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, मतलब यहाँ फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। पार्टिकल p विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम है इनसाइड हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस दिया एट अ हाइट, तो ग्राउंड से 0.2 मीटर का हाइट है फ्रॉम द बॉटम व्हेन द बाउल इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड। तो हमें बोलना है कि किस स्पीड से इस बाउल को हम रोटेट करें कि पार्टिकल जो पॉइंट p पे है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो ये जो है, चूंकि सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में टॉपिक, इस एग्जाम में टॉपिक था सर्कुलर मोशन रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपने पढ़ा होगा एक पेंडुलम दैट्स कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में जब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में आपका जो है ये पाथ होता है उसका पार्टिकल का, तो जब आपका पार्टिकल यहाँ आ जाता है, जब ये पार्टिकल यहाँ आता है तो उस पर फोर्सेस जो होते हैं, तो ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन का फोर्स होता है, यहाँ पे वेट होता है mg, और यहाँ की तरफ सीडो फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r। तो इक्विलिब्रियम ये है कि कॉनिकल पेंडुलम, तो मैं यहाँ लिखूँ इट इज अ कॉनिकल पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा चले गए तो किया जा सकता है वहाँ से भी, बट एंट्रेंस मीन्स इसको आप जल्दी से देख लो, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कॉनिकल पेंडुलम में यहाँ पे पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे फोर्स टेंशन है, बाहर की तरफ सीडो फोर्स है और नीचे की तरफ वेट है। तो यहाँ पे भी देख लो आप, अगर ये पार्टिकल p यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो टेंशन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, बाहर की तरफ यहाँ पे डेफिनेटली सीडो फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और नीचे की तरफ इस पे वेट होगा दैट इज mg। तो ये बिल्कुल कोनिकल पेंडुलम को सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन वो
टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद दूसरा है हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, सीडो फोर्स बाहर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। तो कोनिकल पेंडुलम जैसा है, और कोनिकल पेंडुलम में इक्विलिब्रियम पे कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा होता है बराबर जी डिवाइडेड बाय एल ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर कोनिकल पेंडुलम व्हेन द पार्टिकल इज that at equilibrium here, and since here also the particle is equilibrium, we have to calculate with what angular velocity we will rotate so that it will remain in equilibrium. The condition for conical pendulum is cos theta is equal g by l omega square. आपने पढ़ा होगा, तो ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, इट इज g by l cos theta, और फिर आप ले सकते हो इसको, आप इसको ले सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ g by L cos थीटा। अब हम यहाँ वैल्यूज ड्रॉप करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा आपका रूट ऑफ जी 10 लेंगे, L जो है L हो गया इसका लेंथ और वो है रेडियस, दैट इज 0.5, और cos थीटा जो है, cos थीटा यहाँ पे अगर आप थीटा ये लेंगे, cos थीटा हमेशा होता है बराबर, इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज 0.3, बेस इज 0.3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 0.5, तो इट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5। देख लीजिए आप 0.5 कैंसिल होगा, 0.3 हो गया 100, तो cos थीटा हो गया बराबर 100/3, तो 100/3 कोई ऑप्शन है नहीं, रूट ऑफ 100 होता है 10, तो 10/√3 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10/√3 ये है बच्चे इसका आंसर। तो इट फॉलोज द कॉनिकल पेंडुलम, जो कॉनिकल पेंडुलम का इक्वेशन है बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कॉनिकल पेंडुलम में cos थीटा इज इक्वल g by l ओमेगा स्क्वायर। आई हैव यूज्ड द सेम थिंग हियर कि यहाँ पे सीडो होगा, वेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन है, सेटिस्फाइंग दैट, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन cos थीटा होता है डायरेक्टली g by l ओमेगा स्क्वायर। यू रिमेंबर इट एंड यू कैन सॉल्व इट इन नो टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कॉइल, तो आपने एक कॉइल ली है और आप एक मैग्नेट उसकी तरफ ला रहे हैं, तो रैपिडली एंड स्लोली द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ जो होता है इंड्यूस्ड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा, तो रैपिडली के केस में जो है ईएमएफ ज्यादा होगा, तो मोर इन केस फर्स्ट, क्योंकि जब रैपिडली है तो आपका ईएमएफ भी ज्यादा डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर परपेंडिकुलर इन अपोजिट फेज, बिल्कुल गलत है, अपोजिट फेज नहीं होते, इन अपोजिट फेज बिल्कुल गलत है, इन फेज एंड परपेंडिकुलर, तो ये आपने पढ़ा होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज 500 हर्ट्ज एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 5000। तो आपका बैंडविड्थ दिया है, बैंडविड्थ आपका दिया है, बैंडविड्थ कितना दिया है, बैंडविड्थ दिया आपका 500 आपका बैंडविड्थ दिया हर्ट्ज, और आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है ओमेगा नॉट, दैट इज 5000 हर्ट्ज। हमें निकालना है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है दैट इज ओमेगा नॉट, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तो ये हो गया 5000 डिवाइड बाय 500, 0 0 कट के ये हो गया 10, आंसर शुड बी 10, क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट शुड बी 10, दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज थिक वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, तो ये एक थिक वायर है, इसका रेडियस जो है दैट इज r, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड दैट इज f इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इज कनेक्टेड द गैल्वानोमीटर g, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज r, इसका रेजिस्टेंस जो है वो r है, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, हम सबको पता है कि जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट होता है, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ होता है बराबर NBA ओमेगा डिवाइड बाय r। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए, पीक वैल्यूज n, नंबर ऑफ टर्न्स हम 1 लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया सेमी सर्कल का होता है पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फ्रीक्वेंसी हम सबको पता है इट्स 2 पाई न्यू, एंड न्यू के बदले इसने f यूज किया है, डिवाइडेड बाय r इज द रेजिस्टेंस। देखिए 2 निकल गया, 1 तो था नहीं, I इज इक्वल यहाँ आ जाएगा b पाई स्क्वायर r स्क्वायर f डिवाइडेड बाय r शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, b पाई स्क्वायर r स्क्वायर f डिवाइडेड बाय r इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ सर्कल विद वेलोसिटी दिस, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप देख लीजिए, यहाँ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, तो इस इक्वेशन के हिसाब से रेडियस एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 0.5, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पहले ही वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इट इज 1/2 t इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। देन द टोटल एक्सेलरेशन of the particle at the moment when it covered 1/10 of the circle, तो 1/10 of the circular motion जो वो करता है हमें टोटल एक्सेलरेशन, पहले आप देख लीजिए वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर से दो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशंस एग्जिस्ट करेंगी, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, उनका रिजल्टेंट आंसर होगा। अब अगर ये वेलोसिटी जो है पार्टिकल का जिसे वो मूव कर रहा है, तो इमीडिएटली यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बराबर dv/dt, तो इसका dv/dt जो है वो 1/2 होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1/2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर टेंजेंशियल। अब हम सेंट्रीपिटल के लिए जाएंगे। अब सेंट्रीपिटल जाने से पहले आपको बोल रहा है मैन इट कवर्ड 1/10 ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो ये 1/10 ऑफ द सर्कुलर मोशन जो है, ये 1/10 ऑफ सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? 1/10 ऑफ सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? 1/10 ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब है थीटा है बराबर 2 पाई 360 डिवाइड बाई 10, मतलब थीटा दिया गया आपको π/5 रेडियन पर सेकंड। ये मतलब है 1/10 ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि 1/10 ऑफ द सर्कुलर मोशन मींस 1/10 ऑफ 2 पाई एंड दैट इज π/5। अब आप सेंट्रीपिटल, तो टेंजेंशियल तो आ गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो दैट इज v²/r। तो अगर आप v²/r करेंगे, v²/r इज द रेडियस, तो v² ये है, तो ये हो गया t² डिवाइडेड बाई 4r। तो ये होना चाहिए आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मसला ये है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ना t पता है, ना r पता है, ना रेडियस दिया है, ना t दिया है, तो हम कौन से टाइम पे निकालना है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब कैसे निकालें? नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ ऑफ अल्फा t²। अब थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइडेड है, दैट इज π/5 इज इक्वल टू इनिशियल तो रेस्ट पे है एंड देन इट इज 1/2। अब अल्फा कहां से लाएंगे? अल्फा हम कहां से लाएंगे? अगर आप देखोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपको प्रोवाइडेड है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको जो प्रोवाइडेड है 1/2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो r अल्फा के बराबर होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आपने पढ़ा होगा, तो अल्फा आ गया बराबर 1/2r। तो हमने अल्फा यहां से डिराइव किया, तो ये आ गया 1/2r और ऊपर t²। अगर आप देखोगे यहाँ π/5 जो है वो बना t²/4r, तो t²/4r। तो अगर आप यहाँ देखोगे t²/4r और t²/4r, यही तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा यही है, तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा π/5 आया। नाउ वी हैव टू एक्सेलरेशंस, वी हैव सेंट्रीपिटल एंड वी हैव टेंजेंशियल। वी हैव कैलकुलेटेड बोथ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। अब आपका मसला है आंसर क्या होगा? सर आंसर होगा A इज इक्वल, हम सबको पता है इट इज टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो आंसर शुड बी इट इज 1/2 का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल स्क्वायर, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस π/5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 0.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। यू कैन सॉल्व इट फर्दर एंड 0.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर is the right answer of this question, but believe me, this is the most important question. Question number next is, a vehicle is moving with a velocity v on a curved road of width b and radius of curvature r. तो vehicle इस speed से move कर रहा है curved road of width b and a radius of curvature r. For counting the centrifugal force on it, what should be the difference of heights between the outer and the inner edges of the road? तो difference of heights में आपने पढ़ा होगा, that's banking of roads. तो आपका एक व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है एक ट्रैक पे, और उसको कितना हमें एलिवेट करना पड़ेगा, तो हमें ये हाइट निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट सो दैट द व्हीकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो व्हीकल जो है यहाँ पे मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इसको किस हाइट से इस रोड को उठाना है कि उसको बैंकिंग प्रोवाइड हो जाए? तो हम सबको पता है कि दिस एंगल ऑफ बैंकिंग जो होता है tan थीटा हमने डिराइव किया होता है, इट इज v²/rg। नाउ सिंस एंगल इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, बैंकिंग एंगल बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा के tan थीटा के बदले में यूज कर सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू v²/rg बिकॉज बैंकिंग एंगल स्मॉल। अब जो ब्रेडथ ऑफ द रोड है वो b प्रोवाइडेड है, द विड्थ ऑफ द रोड इज b, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h/b जो है आपका v²/rg हो गया। तो h किसके बराबर हो गया? v²b/rg। कुछ बच्चों को तो डायरेक्टली याद होता है, जैसे tan थीटा v²/rg होता है, हाइट v²b/rg, v²b/rg is the right answer for this question. Question number next is,
इन सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, हम सबको पता है इट्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस ओमेगा क्रॉस वी स्क्वायर ओमेगा क्रॉस वी सॉरी। तो आपका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो ओमेगा क्रॉस वी होता है। दिस इज ओमेगा क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स के बराबर होता है। ना ये है ना ये है ना ये है, ओमेगा क्रॉस वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है। तो डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट का मतलब जो v है वो कांस्टेंट है, मगर v का क्या है, v इज वेलोसिटी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी इक्वल एंगल्स इन इक्वल, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब v कांस्टेंट, बट v भी कांस्टेंट किस हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो इट्स वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, वेक्टर गलत, कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट्स चेंजेस इन मैग्नीट्यूड है ना, चेंजेस इन डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, चेंजेस इन डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर का अगर कुछ चेंज होगा तो वो डायरेक्शन चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ कार व्हाइल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एक कार जा रही है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड उसकी है। थ्रू अ कर्व्ड रोड इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो रेडियस इसका 10 मीटर दिया है। तो यहाँ पे कार जब आ गई, हमें निकालना कि द मास ऑफ द कार इज 500 ग्राम 500 kg, द रिएक्शन ऑफ द कार एट द लोवेस्ट पॉइंट, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे n माइनस एम जो होगा, n माइनस एम विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे mg वेट डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो n माइनस एम विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। तो मैं लिखूंगा n माइनस एम विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। तो n डेफिनेटली यहाँ mg प्लस mv स्क्वायर बाय r के बराबर होना चाहिए, क्योंकि n नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो m बाहर आएगा तो ये बनेगा g प्लस v स्क्वायर बाय r। अब आप देख लीजिए, m दिया है 500, v स्क्वायर दिया है 20 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, अच्छा g दिया है 10 पहले, सॉरी, तो g दिया है 10 प्लस ये हुआ 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r दिया गया है 10। अब इसको आप सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 25 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a rubber band of length L has a stone of mass m tied to one end। तो हमारे पास एक रबर बैंड है जिसकी लंबाई L है, और हमने यहाँ पे इसको एक जो है स्टोन यहाँ पे टाई कर दी है, तो स्टोन टाई कर दी है। फिर क्या है, इट्स वर्ल्ड विद स्पीड v, इसको आपने वर्ल किया विद स्पीड v, इट्स वर्ल्ड विद स्पीड v, सो दैट सम स्टोन डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ द टेंशन इन द रबर बैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टेंशन यहाँ की तरफ और फोर्स और स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ, तो आपको टेंशन निकालना है इसमें। तो सीधी बात है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि रबर बैंड है, और रबर बैंड जब आप देखोगे तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। जब वो एक्सपैंड होगा तो अब जो एक्सपेंशन यहाँ हुआ, जो इसमें एक्सपेंशन हुआ, मान लीजिए वो x है और अब स्टोन यहाँ आ गया और वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये अब टेंशन का जो फॉर्मूला है, टेंशन हम सबको पता है, इट इज जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, बट हियर इट इज नॉट l, इट्स l प्लस x, क्योंकि रबर बैंड का तो सेंटर से लेंथ l ही था, बट जब आपने मूव किया तो रबर बैंड थोड़ा जो है एक्सपैंड हो जाता है। जब इसमें एक्सपेंशन होता है x का, तो अंदर की तरफ तो टेंशन लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, बट r विल बी हियर l प्लस x। तो ये होना चाहिए टेंशन का फॉर्मूला, बट ऐसा कोई है नहीं। तो हमें यहाँ इन ऑप्शन से देखना है कि टेंशन कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। तो सीधी बात है, अगर यहाँ l होता तो टेंशन का वैल्यू t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, बट यहाँ l बढ़ गया तो टेंशन डेफिनेटली कम होना चाहिए। तो टेंशन जो है आपका, टेंशन शुड बी लेस देन mv स्क्वायर बाय l इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस कंप्लीट्स आवर इंटरेक्शन इन फिजिक्स। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।